So S3 simple storage service is a serverless architecture. Okay, why serverless? Because we just take storage. We don't know कि server how it is provisioning, how it is working. We do not know how many servers are there, how it is managed, which operating system is there. We are not bothered. That is the reason we call serverless architecture. And it gives a storage, but this storage is different than the EBS, different the one that we have taken along with EC2. This is different. In EC2 we have EBS. EBS is a file system, like the same you have in your laptop, okay, or desktop. मतलब उसके अंदर you can install the operating system, you can install the applications and do the processing, right? But this is not the operating system. S3 is not the file system. It's not a file system. किरण क्यों डेविएट करते हो यार, अचानक से बीच में कुछ और पूछ गए जो रिलेटेड इसी कंपोनेंट से है. यू आस्क दैट द कंपोनेंट दैट इज डिफरेंट यू कैन आस्क लेटर, अदरवाइज पूरा डेविएट हो जाएगा, राइट? इलास्टिक फाइल सिस्टम, राइट? वी विल टॉक EFS. यहाँ पे लिख लेता हूँ, याद दिलाना मुझे, राइट? बहुत सारे स्टोरेज हैं. वी विल टॉक EFS लेटर, ठीक है? तो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू टू आस्क, बट क्या होगा, डेविएट हो जाएंगे हम ना, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम उससे, है ना? सो आई रिजर्व इट. ओके, सो दिस इज S3 और दिस इज फाइल सिस्टम. मुझे याद दिलाना बाद में, मैं आपको करा दूंगा, राइट? आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपने मुझे पूछा है तो मैं ज़रूर कराऊंगा आपको. ओके, सो S3 is not a file system. S3 is a object storage. It's a object storage. It means inside this S3 you can store object. Any type of file is called object, right? Because you have pictures, you have videos, you have audios, you have recordings. Whatever is called object. Clear? Okay. So let's say I have a bucket. The first folder that you create inside the S3 is called bucket, right? This is the first folder. Inside that right, you can have a folder, or you can have inside the folder object, or you can directly have a object, right? Or you can have a folder, inside that you can have object means file. That is possible, right? But इस folder को भी object बोलते हैं और इस file को भी object ही बोलते हैं. Any type of file, सत्यवान, HTML, Java file, picture, video, audio, you name the things is called object, right? आप HTML डालिए, जो मन करे वो डालिए, everything is called object. Okay, ठीक है? So you can directly put it in as an object into this bucket, and or you create a folder, inside that you put a object, right? Doesn't matter, but both of them are called object. तो folder create करते हो उसे भी object बोलते हैं, और file डालते हो उसे भी object ही बोलते हैं. Okay, all of them is called object, right? You can create up to 100 buckets, right? You can create up to 100 buckets. Okay, if you need more, then you need to contact to AWS. Okay, and this bucket name is unique. This bucket name is unique in whole AWS. It means if you already created, nobody else can create in AWS. मतलब अगर विकास ने अजय नाम का बकेट बना दिया तो I cannot create. ओके, मैं नहीं बना सकता, राइट? मतलब
nobody can create if you created it, means it is unique in the whole AWS world, right? But so bucket name is unique. You can create 100 buckets, right? And inside bucket you can put objects. Okay. Vikas, any question? Guys, I am just asking Vikas. Vikas means you guys. Okay. Clear? So S3 bucket is 100. Inside that you are creating object, right? That's what I said. And bucket is unique. That's what I said, right? And S3 is global and bucket is regional. There is no zonal. यहाँ पे ऑब्जेक्ट बकेट कुछ भी जोन नहीं होता, मीन्स एबिलिटी जोन नहीं होता इन S3. और S3 जो है वो VPC के अंदर नहीं आता. Whenever you select S3 there will not be any VPC, right? तो कभी अगर आर्किटेक्चर बनाओगे तो अगर ये VPC है इसके अंदर S3 मत दिखाना. S3 हमेशा बाहर होता है, अंदर नहीं होता. विकास, are we good? Yes sir. Okay, right? Can we use S3 as a file sharing things like have file server? नहीं समझ आ रहा मुझे अक्षय आपका क्वेश्चन. फाइल सर्वर मीन्स व्हाट? सर्वर, मैंने पहले ही बोला ये सर्वरलेस आर्किटेक्चर है. सर्वरलेस, तो सर्वर की तो बात ही मत करो, राइट? ये सर्वरलेस आर्किटेक्चर है. S3 इज सर्वरलेस आर्किटेक्चर. अक्षय, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. फाइल सर्वर means what? Anybody wants to say something? Akshay, I'm waiting for your response. Like in office we have a shared storage. नहीं ना सर, उसके लिए EFS होता है जो अभी मैंने बताना है मुझे, राइट? किरण ने क्वेश्चन पूछा ना EFS, उसके लिए फाइल सिस्टम जो आप बोल रहे हैं उसे नेटवर्क फाइल सिस्टम बोलते हैं. नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS. क्या कह रहे हो? जिसको लोग मैप करके इसको एक्सेस देते हैं, राइट, उसको NFS बोलते हैं, राइट? NFS you know, I will teach you, as I said to Kiran. It is not in your course, but he asked, so I will teach. That's not a problem. Okay. So S3 serverless है. I am repeating again, right? And it's not, आप इसके अंदर आप इसको you cannot take EC2 or you cannot mount it. आप माउंट नहीं कर सकते इसको. अगर आप माउंट करोगे तो AWS सपोर्ट नहीं करेगा. आप इसको C ड्राइव नहीं बना सकते या D ड्राइव नहीं बना सकते या रूट फाइल नहीं बना सकते, राइट? या रूट ABC माउंट नहीं कर सकते. मतलब आप इसके अंदर आके ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अगर आप करते हैं तो AWS बोलेगा आई विल नॉट गिव यू द सपोर्ट. समझ रहे हैं आप? क्लियर है गाइस? ओके. नाउ इन S3 whenever I upload, whenever I create a bucket, right, the bucket name is unique and right inside you put the object. जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालते हो, objects gives you the URL. It gives you the ARN name, right? ARN means unique name by AWS. आपका नेम तो रहने वाला है. जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया a.jpg, इट्स नॉट गोइंग टू गो, बट AWS के पास 1 लाख a.jpg होंगे, तो उसको एक यूनिक नेम चाहिए. ओके, सो इट क्रिएट्स ऑटोमेटिकली, राइट? AWS रिसोर्स and I'm forgetting. Okay, I will tell. Okay, and it also gives a date time stamp.
and it also gives a category. The default category is standard. There are many other categories. Okay, the default category is standard. Okay, so I talked about 4 things. URL, whenever you put the object, it is URL. It gives a URL, means it can see from the internet. It is a unique AWS name. Your name will anyway will be there. Date, time stamps and a category. मतलब कि अगर आपने कोई पिक्चर डाली, लेट्स से आपकी कोई पर्सनल पिक्चर है, अगर आप उसको बकेट में डालते हैं और ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, तो उसका URL आ जाता है. इसका मतलब वो इंटरनेट पे विजिबल है. इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट सिक्योर नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. योर ऑब्जेक्ट इज वेरी सिक्योर. Even you put into the bucket, it gives a URL, but by default access is no. By default access is no. इंटरनेट पे दिखेगा नहीं. URL तो मिल जाएगा बट दिखेगा नहीं. Amazon रिसोर्स नेम, या करेक्ट नेम. ओके, क्लियर है गाइस? तो ये 4 स्टफ ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हाफ एन आवर से ज़्यादा में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, राइट? स्पेशली इसके बारे में. Now if I talk about, right, bucket, and you have hundreds of objects inside the bucket, object 1, object 2, object 3, right? अगर मैं इस bucket को by default object का URL आता है, that I said, but you cannot access from the internet. It will give you the access issue, access denied. Okay, it will not let you to access. तो आप इस bucket, इस object को आप public कर देते हो, then you can access from the internet, right? Then इस ऑब्जेक्ट को करोगे तो ये भी, इस ऑब्जेक्ट को करोगे तो भी. इसका मतलब अगर इसके ऊपर बकेट है, अगर मैं बकेट को पब्लिक कर देता हूँ विकास, तो माई ऑब्जेक्ट विल ऑटोमेटिकली पब्लिक, राइट? ये मेरा बकेट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? अगर इस बकेट को पब्लिक कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाएगा, राइट? राइट विकास? यस और नो? यस सर. द आंसर इज नो. Answer is ऑब्जेक्ट को भी पब्लिक करना होगा, right? The object, even if you make the bucket public, objects does not become public. No, ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं होते हैं अगर आप बकेट को पब्लिक कर देते हो, राइट? क्वाइट पॉसिबल दैट बाय मिस्टेक किसी ने बकेट को पब्लिक कर दिया तो आपका डेटा सब पब्लिक नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल आपको पब्लिक करना पड़ता है, याद रखिए. ओके गाइस, तो बकेट का पब्लिक होने से ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं. ओके, क्लियर है? whenever you put the object into the bucket, then by default it comes into the standard category. What is this standard? This standard says that, again very clearly listen guys. How many people joined today? Around 34. Still many people missing. So guys, standard, right? In standard category, whatever I am going to say, that is for AWS, not for you. That is for AWS, not for you. It means it put into the standard category. What does mean standard category? Boss, AWS आपको गारंटी देता है कि object will not be deleted or it will always be available, and for that it gives a guarantee of this. काउंट करते रहो विकास. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. यहाँ पे डॉट लगा देते हैं. AWS gives a guarantee of 99.9 times, 99.9 times कि आपका ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अवेलेबल. ओके, योर ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. क्लियर गाइस? And to manage this, it replicates it 6 times.
बट वो 6 टाइम आपको नहीं दिखने वाला, वो AWS के लिए है, आई रिपीट, क्योंकि आपके लिए इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं ना वो, तो उस ऑब्जेक्ट को रिप्लिकेट करता है 6 टाइम। आप जो ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो वो आपको एक ही दिखेगा, आपको 6 नहीं दिखने वाले। AWS ने अपने लिए रखा है, राइट, आप समझ रहे हैं, AWS ने अपने लिए रखा है उसको 6 टाइम करके, कि अगर बॉस कहीं एक प्लेस से डिलीट हो गया तो वो दूसरे प्लेस से लेकर आपको मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? सो स्टैंडर्ड में 6 टाइम रिप्लिकेशन 99.9 टाइम्स, राइट, 6 टाइम एबेबिलिटी, राइट, 6 टाइम रिप्लिकेशन 99 टाइम्स एबेबिलिटी। सॉरी, somebody wants to say something? Guys, noise is there, if you are not talking, mute. Thank you. Okay, any question on standard? Anyone? अच्छा सर, मेरे साइड से ऑब्जेक्टिव डिलीट हो जाए, I'm sorry? तो कोई गारंटी नहीं है फिर? Sorry? मेरी साइड से ऑब्जेक्टिव में डिलीट हो जाता है। अगर आप डिलीट कर देते हो, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट डिलीट किया तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, और इसके साथ ही 6 टाइम जो कॉपी करा है उसने, 6 टाइम जो किया है वो भी डिलीट हो जाएंगे 6 टाइम्स। ओके, क्लियर है? 6 टाइम ऑब्जेक्ट्स भी डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि AWS ने आपके लिए रिप्लिकेशन कर रखा है। इट इज चार्जेबल, ऑफ कोर्स इट इज चार्जेबल, S3 इज चार्जेबल, राइट, बट 5 GB आपको फ्री मिलता है, 5 GB आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिलता है। ओके गाइस, गाइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि डेटा, ये जो डेटा है ये आपका S3 बकेट है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को लेकर आते हो, राइट, दिस इज़ योर लैपटॉप, दिस इज़ AWS। तो ये जो लेकर आते हो ना, तो यहाँ पे AWS का नेटवर्क भी लगा हुआ है, मतलब नेटवर्क का मतलब समझते हो ना, वायरिंग हो रखी है, डेटा आना डेटा जाना। तो या तो ऑब्जेक्ट को निकालते हो, जैसे ब्राउज़र पे जाके देखते हो, क्योंकि URL है तो डेटा बाहर जाता है यहाँ से, आप डालते हो तो डेटा अंदर आता है। तो यहाँ पे जो अंदर आता है, राइट, तो जो अंदर आता है उसे बोलते हैं पुट, जो बाहर आता है उसे बोलते हैं गेट। तो इसका भी चार्ज लगता है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज का जो चार्ज है, स्टोरेज चार्ज, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क चार्ज। नेटवर्क चार्ज गेट और पुट, गेट पुट का चार्ज लगता है, एंड इस डेटा स्टोरेज का जो चार्ज है दैट इज लेस, बट डेटा का गेट और पुट का चार्ज है कंपैरेटिवली हाई। क्लियर है? ये याद रखना। तो कभी भी आप कॉस्ट कैलकुलेशन करो तो सिर्फ इतना मत कर लेना कि डेटा स्टोरेज का चार्ज, वो तो बहुत चीपर है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड देता है 99.9 टाइम्स, 6 टाइम रिप्लिकेशंस, याद रखना, राइट, इन मोर देन 3 एबिलिटी जोन में रिप्लिकेट करता है वो, किसी भी रीजन के, क्योंकि आप जो भी बकेट बनाते हो दैट बकेट इज बेस्ड ऑन रीजन। कौन से रीजन में करता है वो नहीं बताएगा, ओके, बिकॉज वो खुद के लिए करता है, राइट, क्लियर है? शैल आई मूव ऑन विकास? यस सर। तो ये 6 टाइम रिप्लिकेशन अगर करता है तो ये विकास है। इस विकास ने क्या किया, इसने एक ऑब्जेक्ट लिया, लेट्स से विकास की बर्थडे पिक्चर, बर्थडे पिक है, राइट, विकास और बर्थडे पिक, राइट। तो आपने क्या किया, मॉर्निंग में आपने जाके एक पिक्चर क्लिक करी, राइट, विद द सूटेड बूटेड एंड ऑल, राइट, एंड आपने इसे अपलोड कर दिया। तो ये रिप्लिकेशन होना शुरू हुआ। रिप्लिकेशन ना एक साथ नहीं होता, रिप्लिकेशन सिक्वेंशियली होता है। ओके, तो विकास ने फोटो अपलोड कर दी यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे पिक्चर आ गई विकास की,
राइट, यहाँ पे है किरण। तो किरण ने क्या किया, that I will talk about in costing, Ketki. We will learn costing, okay? I will teach you there how much it will cost. Okay? So यहाँ पे किरण बैठा है, तो किरण ने क्या किया, किरण ने रिक्वेस्ट दी, राइट? किरण रिक्वेस्टेड ओके। सो लेट्स से यहाँ पे विकास ने एक पिक्चर अपलोड करा, ओके, और वो पिक्चर गया ए फॉर रिप्लिकेशन, उसने अपलोड ही किया है, और किरण ना राइट अवे, एक्चुअली जो रिप्लिकेशन यहाँ से यहाँ होता है, AWS कहता है मैं 9 मिली सेकेंड्स में रिप्लिकेट कर लेता हूँ, 9 मिली सेकेंड्स में, ओके। लेट्स से आई डोंट एक्सेप्ट 9 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड्स, दैट इज 3 टाइम्स, राइट। तो जैसे ही विकास ने अपलोड करने का कोशिश किया, अपलोड किया, किरण ने उसको एक्सेस कर लिया। अगर किरण का रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुंचा तो किरण विल गेट हिज बर्थडे पिक्स, राइट। विकास, यू आर गेटिंग इट, राइट, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यस सर, एक्चुअली या तो इसको बर्थडे की पिक्चर मिल जाएगी। लेट्स से अगर ये रिक्वेस्ट इस वाले सेक्शन में नहीं गई, इस वाले सेक्शन में चली गई, तो क्या होगा विकास? यहाँ पे तो पिक्चर पहुंची नहीं, अभी रिप्लिकेट ही नहीं हुआ, पिक्चर यहाँ तक पहुंची थी, पिक्चर का रिप्लिकेशन यहाँ तक हुआ था, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे चली गई, तो क्या होगा विकास? ही विल नॉट गेट द पिक्चर, ओके, राइट। जबकि आपने तो अपलोड कर दिया, फिर भी किरण को पिक्चर नहीं मिलेगी। क्लियर है सर? ओके, लेट्स से आपने क्या किया, सॉरी, आपको क्या कहने का मतलब है, ABC में मान लो अगर इमेजेस पहुंच गई, रिप्लिकेशन जमा गई, और टी में अगर रिप्लिकेट नहीं हुआ तो किरण को नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि एप्लीकेशन पूरा हो तभी उठाएगा, एक्चुअली रेप्लिकेशन पूरा होगा तभी उसको मिल पाएगा। उसकी रिक्वेस्ट इन 6 रिप्लिकेशन में से कहीं भी जा सकती है। अगर रिप्लिकेशन हो चुका है और किरण की रिक्वेस्ट उस सेक्शन में गई है तो उसको पिक्चर मिल जाएगी, राइट। बट अगर रिप्लिकेशन ही नहीं हुआ है, राइट, तो और उसकी रिक्वेस्ट ऐसे सेक्शन में गई है जहाँ पे रिप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो उसको पिक्चर नहीं मिलेगी। यू अंडरस्टूड नाउ? अच्छा, मतलब डिले होने का रीजन यही है, रिप्लिकेशन ना हो। सॉरी मीनिंग ये हुआ ना कि अगर मैं अपलोड कोई ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ और किरण को एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है या तो वो रिप्लिकेशन नहीं हुआ है जिस सेक्शन से वो उठाना चाह रहा है ना, उस रीजन, मतलब ये ABCDEF के अकॉर्डिंग। ऐसा हो सकता है कि उसको परमिशन भी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, राइट। नाउ अनदर केस, या गो अहेड। डाउट है, या तो जब हम रेप्लिकेशन करते हैं तो जब नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ARN नंबर जनरेट होता है और URL जनरेट होता है। तो जो रेप्लिकेशन के टाइम होता है तो वो भी सेम URL होता है या मतलब डिफरेंट URL? मैम ये URLs ना, ये URLs AWS के लिए हैं, जितने भी रिप्लिकेशन है ना, सॉरी, जितने भी रिप्लिकेशन है किसके लिए हैं? AWS के लिए। ये कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ऑल द थिंग्स यू विल नेवर गेट टू नो। ओनली द थिंग इज जब रिक्वेस्ट जाती है ना एक्सेस करने के लिए, उस टाइम पे ये यूज होते हैं, राइट। तो यू विल नेवर गेट टू नो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि किरण की रिक्वेस्ट D सेक्शन में गई है या E सेक्शन में गई है या A सेक्शन में गई है, नहीं पता चलेगा। इन सबका URL सेम होता है, इन सबका ARN सेम होता है। क्लियर है? यस। ओके, तो लेट्स से ना विकास ने इवनिंग में एक और पिक्चर क्लिक करी, राइट, बर्थडे के दिन ही इवनिंग में क्लिक करी और उसने इस पिक्चर को यहाँ पे डाल दिया। अब ये पिक्चर ना सेम थी जो मॉर्निंग में डाली थी, मॉर्निंग की पिक्चर का नाम था A.jpg। इसने इवनिंग में क्या करा, ही फॉरगॉट कि A.jpg ऑलरेडी अपलोडेड है, उसने शाम को एक और बर्थडे पिक्स अगेन पार्टी सेलिब्रेट करते हुए डाल दिया हमें, उसका नाम भी उन्होंने APG। तो क्या होगा, ये पिक्चर रिप्लेस हो जाएगी, राइट, पुराने वाले से। अब यहाँ पे रिप्लेस हो गया,
बट यहाँ पे रिप्लिकेट नहीं हुआ अभी तक, ई और एफ में या सी में रिप्लिकेट नहीं हुआ एग्जाम्पल, एंड किरण ने वापस एक्सेस करना शुरू करा, तो किरण को कौन सी पिक्चर मिलेगी? ओल्ड। क्लियर है? लेट्स से विकास ने यहाँ पे पिक्चर डिलीट कर दी जो अपलोड करी थी, यहाँ पे रिप्लिकेट नहीं हुआ अभी तक, यहाँ पे रिप्लिकेट, यहाँ से पिक्चर डिलीट हो गई, यहाँ से डिलीट नहीं हुई अभी, और किरण ने एक्सेस करा, तो क्या होगा? उसको पिक्चर मिल जाएगी। क्लियर है दोस्त? एवरीबॉडी विद मी? ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो रिप्लिकेशन का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रिडंडेंसी प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रिंसिक रिडंडेंसी प्रोसेस। ओके, याद रखना इसको, ये पीपीटी में लिखा है। ओके, इंट्रिंसिक रिडंडेंसी प्रोसेस, याद रखना। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड, राइट? स्टैंडर्ड 6 टाइम रिप्लिकेशन एंड 99.9 टाइम्स एबिलिटी देता है। बट लेट्स से विकास ने जो मॉर्निंग में पिक्चर अपलोड करी थी, राइट, फिर इवनिंग में क्या करा? इवनिंग में उसने एक और बर्थडे की जो पिक्चर वापस रिप्लेस कर दी थी, a.jpg, और यहाँ भी a.jpg जो था, इसने इससे रिप्लेस कर दी। पिक्चर दूसरी है बट नेम सेम है। अब विकास कहता है कि यार मॉर्निंग वाली पिक्चर चला गया, अब मैं क्या करूँ? आइदर 2 ऑप्शन, या यू फॉरगेट पिक्चर वट एवर यू अपलोड इन द मॉर्निंग, कि यार इफ माई डेटा इज लॉस्ट तो लॉस्ट, पिक्चर गया, या यू रिक्रिएट द पिक्चर, वापस मॉर्निंग वाले पॉज में जाओ, सेम ड्रेस पहनो, सेम पोज दो, सेम प्लेस पे जाओ, सब कुछ रिक्रिएट कर लो उसको। Either you recreate the things or you forget whatever the picture you have, right? In both the cases your data is not critical, right? अगर आपका डेटा क्रिटिकल नहीं है तो why will you put into the standard? Because standard में 6 टाइम रिप्लिकेशन 99 टाइम्स है, तो इसका कॉस्ट भी हाई है, तो इसका कॉस्ट भी हाई है। तो आप इसको 6 टाइम रिप्लिकेशन की जगह आप एक काम करो, आप इसको RRS में सेव कर दो, रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज। मतलब रिडंडेंसी इतनी सारी नहीं चाहिए, रिड्यूस रिडंडेंसी को आपने कम कर दी। कितनी कम कर दी? इंस्टेड ऑफ 6 टाइम आपने 2 टाइम्स कर दिया उसको, और इंस्टेड ऑफ 99.9 टाइम्स आपको मिलेगा 99.99, राइट? 2 टाइम्स कर दिया 99 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड RRS, रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज। क्योंकि आपका डेटा या तो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, या आप ओके हो इफ डेटा इज नॉट रिवर्टेड बैक। इन बोथ द केसेस यू आर गुड, राइट? व्हाई विल यू डू दैट इन दिस केस स्टैंडर्ड? यू विल नॉट डू द स्टैंडर्ड कैटेगरी, राइट? यू विल ओके टू गो हेड विद द RRS, एंड RRS मिलने के बावजूद भी द वे दैट यू योरसेल्फ मेंटेन द डेटा, इट इज 400 टाइम्स सेव, 400 टाइम्स मोर सेफ देन द वे दैट यू मेंटेन इट, बिकॉज गारंटी देखो कितनी मिल रही है, राइट? सो द फर्स्ट कैटेगरी वाज स्टैंडर्ड, सेकंड कैटेगरी वाज RRS. Any further question? Right? But AWS ने एक नई कैटेगरी लॉन्च करी है, that category is called, आप इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे क्या होता है 6 टाइम रिप्लिकेट करता है, यहाँ पे 2 टाइम्स रिप्लिकेट करता है, राइट? यहाँ पे मिनिमम 3 एबिलिटी जोन में करता है, यहाँ पे 2 एबिलिटी जोन में करता है। बट AWS कहता है कि ये कैटेगरी करेक्ट अक्षय,
तो यहाँ पे 2 रिप्लिकेशन करता है, बट AWS कहता है अगर आपका डेटा रिप्लिकेट, अगर आपका डेटा सच में नहीं है तो ये कैटेगरी ना AWS ऑब्सोल्यूट कर रहा है, मतलब इसको हटा रहा है, राइट, इज गोइंग टू गो अवे सून। तो AWS ने इसकी जगह नई कैटेगरी लेकर आया, दैट इज कॉल्ड वन जोन रिप्लिकेशन। वन जोन रिप्लिकेशन, राइट। वन जोन रिप्लिकेशन में इंस्टेड ऑफ टू टाइम रिप्लिकेशन इट विल ओनली डू वन टाइम रिप्लिकेशन, ओनली वन टाइम, and the data guarantee is 99.9. So instead of RRS nowadays the people are using one zone replication, right, because यहाँ भी guarantee 99.9 की मिल रही है। Okay, so this is the latest category that AWS bought it nowadays. So we talked about standard, we talked about RRS, we talked about one zone replication. Okay, we talked about one zone replication, right? Okay, Vikas, yes sir, yes विकास आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे में आपने एक पिक्चर क्लिक करी है, उस पिक्चर को फेसबुक पे डाला आपने, राइट। तो उस फेसबुक पे आपको कमेंट्स मिलने शुरू हो गए, लाइक्स मिलने शुरू हो गए, राइट। उन कमेंट्स और लाइक्स जब आप यूज करते हो, कमेंट्स और लाइक्स को, तो लेट्स से शिट मैन, व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे? हेलो, यस सर, वॉइस आपकी नहीं आ रही थी अभी स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस आ रही है? यस सर, ठीक है, ओके। सो परफेक्ट। सो यहाँ पे वन जोन, तो विकास आपने पिक्चर अपलोड करा और पिक्चर तो उसमें कमेंट्स और लाइक्स आने शुरू हो गए। कितने दिनों तक आते हैं? लेट्स से मैक्सिमम 1 वीक तक, राइट? क्लियर है? 1 वीक तक आते हैं, 1 वीक के बाद वो साइलेंट हो जाता है। लेट्स से कि अगर फेसबुक पर पिक्चर का पर डे 10 रुपीज लेता है, तो आफ्टर 1 वीक जब आपको कमेंट्स नहीं आ रहे, तो विल यू प्रीफर टू कीप इट इन 10 रुपीज कैटेगरी, राइट? यू विल नॉट प्रीफर, रादर यू विल डिलीट इट, राइट विकास? हेलो, चार्जेस लगेंगे तो बेटर डिलीट कर दो सर। आप डिलीट कर दोगे, या आपको फेसबुक एक ऑप्शन देता है कि अगर आप 1 वीक के बाद इसकी कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, तो इसकी कैटेगरी चेंज करने के लिए आपको वो इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज 1 रुपीज चार्ज करता है। तो विल यू प्रीफर इट टू, तो बेटर इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग यू विल पुट इट इनटू द 1 रुपीज कैटेगरी, राइट? समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर आप AWS के अंदर आते हो, अगर आप AWS में यहाँ पे आते हो, तो दिस इज S3, राइट? सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 इज सिंपल स्टोरेज सर्विस, ओके, एंड इट इज नॉट अ फाइल स्टोर, इट इज नॉट अ फाइल स्टोरेज, सॉरी, या फाइल सिस्टम, इट इज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ओके। Come on, why the page is not coming, man? My screen is visible to all of you, right? Yeah, it's coming. Yes sir. Okay, so this is the S3 storage and these are the buckets, right? These are the buckets. So currently I have 4 different buckets. Bucket means the first layer of storage area, right?
तो आप बकेट क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने बोला बकेट क्रिएट जब करते हैं तो बकेट यूनिक होता है, राइट। तो इट मीन्स कैन आई क्रिएट विद द नेम ऑफ विकास? नो, it will not allow me. And bucket is global, right? S3 is global and bucket is regional. Can you see the reasons? Yeah, but there is no zone here, right? And I just click on create and it says that get out. Bucket is you cannot create because bucket name is already there. But मैंने तो नहीं create किया. Somebody might create it in the world. तो इसको unique name दे देते हैं. Today is 0105 2021. Not sure that it is unique or not, right? I click on create. Yeah, it is unique. तो bucket create हो गया. See, it's created. Okay, and I click on this, and inside that I can create a folder or I can directly upload the object. तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ and add file, मैं पूरा फोल्डर भी अपलोड कर सकता हूँ और फाइल्स भी। तो it goes to the my laptop and I click on download and let's say I upload this picture. Click on upload, right? Started uploading now. Okay, so picture is uploaded. This is the one, right? So if I close this section, okay, so this is my picture. It is in standard category. Can you see that? It is in standard category. It is uploaded on date time stamp, right? And if I select this, right, or I click on this, then it will give me the whole property of object. Object का URI, ARN, Amazon resource name, right, and it's a tag. इट्स ऑब्जेक्ट URL. दैट्स व्हाट आई सेड, राइट? ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट? कैटेगरी मिलेगी, URL मिलेगा, ARN नेम मिलेगा, डेट टाइम स्टैम्प मिलेगा, राइट? ऑल दिस थिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट. इफ आई क्लिक ऑन दिस URL इट मीन्स आई शुड गेट द थिंग्स इनटू द इंटरनेट, राइट? बट ये इंटरनेट पे नहीं मिलेगा आपको गाइस, क्योंकि ये बोलेगा एक्सेस डिनाइड. ओके, इट विल से दैट इट इज एक्सेस डिनाइड. ये आपको इंटरनेट पे नहीं जाने देगा, राइट? So it will not let you to go to the internet because it will say the access denied because permission nahi hai, right? So as and when I upload, you have seen that all the options that I mentioned, all of them are valid, right? All of them are valid and it's not letting you to go to the internet. And also it is क्या प्रॉब्लम है इसका यार? करा तो वाईफाई कनेक्ट यार. Yeah guys, that will be the case. As I said that I have connected through mobile hotspot internet, so things will not be very smooth, okay, because the power and backup is both drained, and I have connected through my mobile through hotspot, and my laptop battery is also approx some 33%. So just bear with me. So here I uploaded the object and then I'm trying to access, and if I select this object, if I select the object and I go here down and I change the storage class, I will find all the options that I was talking about, right? It will give me the
option of standard, RRS, one zone replication, right? All the one that I shown you. So can you see that? Standard, RRS, reduced redundancy, one zone, right? One zone infrequent access. What is infrequent? We will talk, right? Sorry Vikas, you are saying something? No. Right. So the thing is that you, as I given the example, you will, after 1 week you will not access, right? It means you want infrequent access. You want infrequent access, and that's the reason the price has been reduced by Facebook to 1 rupees from 10 rupees, right? Right, Vikas? That's the reason it is called Yes. one zone infrequent access. Okay, clear hai? So we talked about 4 different types. All of them are in the PPT, guys, don't worry. Standard, RRS, right? And we talked about, guys help me, standard, RRS and one zone infrequent access, And infrequent. right? Okay, so let's say you uploaded an object to the bucket, right? If you are not using, then you have to convert into the either category, right? जो भी आपको fit लगता है, right? From the standard, because by default it will be standard, but you can convert. But let's say you upload every day, you are uploading thousands of objects. How will you remember that which if you are not using, you should convert into the infrequent, right, category? So AWS gives you the intelligent tiering. Intelligent tiering. Using that, it will automatically convert into the infrequent access. Infrequent access gives you the facility, right? If you are not using, let's say you have not used next 3 days, it will automatically convert your standard category to the infrequent, right? It will convert into the infrequent, right? Are you getting, guys? So you can save the money, because more replication means more money. Okay, more replications means more money. Are you getting, guys, what I am trying to say? Okay, so the another tier, if you look into that, standard, if you want to convert, one zone, or intelligent tiering. Standard, intelligent tier, standard infrequent access, one zone, right? Standard infrequent access क्या है, right? That's what I said कि standard infrequent access का मतलब होता है कि आप standard से, standard means very frequent access, और उससे आप स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करते हो, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि वन जोन में नहीं करेगा, ये भी 6 टाइम रिप्लिकेशन ही रखेगा, राइट? ये भी 99.9 टाइम्स ही रखेगा, सब कुछ सेम है, सेम ये वाला भी सेम है। ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे आप फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं कर रहे हो, राइट? अगर आपका मैं रियल टाइम का एग्जांपल अगर लेता हूँ, तो आप अपना सैलरी अकाउंट है, राइट, से सैलरी अकाउंट है, राइट, उसमें आपने पैसे डाले, आप कभी भी एक्सेस कर रहे हो, राइट, आप कभी भी उसको एक्सेस कर रहे हो, राइट, तो उसमें आपके चार्जेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप उसमें क्या करते हो, आप उसको एक काम करते हो, आप उसको एफडी में डाल देते हो, तो एफडी में ये क्लियर है कि आप उसको तुरंत नहीं निकालोगे, राइट? दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग द मोर इंटरेस्ट, राइट? सब कुछ सेम है, बैंक की गारंटी सेम है, सब कुछ सेम है, पैसा भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज क्लियर कि फ्रीक्वेंट नहीं निकालोगे, दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग द मोर मनी। उसी तरीके से
स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस की कैटेगरी में एवरीथिंग इज द सेम, ओनली द डिफरेंस इज यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेस फ्रीक्वेंटली. Okay, so we talked about 5 types. The very first is standard, second is RRS. Let me repeat it now and then you can ask me the question. The very first is standard, another is RRS, third is standard infrequent access, fourth is intelligent tiering, and fifth is one zone infrequent access. Any question, anyone on this? Anyone? Tushar, how many buckets we can create? Aboli? Right. Very nice. Okay, and the name of the bucket is not unique, right? Anybody can create the any type of bucket, any type of the name, right? Right, Dheeraj? No, sir. Bucket name is Bucket name is unique, unique. right? And bucket is global, right? And bucket is global, right? Regional, sir. S3 is global, bucket is regional. Yes. Correct, Shraddha. S3 is global, bucket is regional. Correct. Regional. Okay. Right, Sachin Wagh. Dilmeet. Perfect. So there are 5 categories we talked about, right? Another category is called glacier. हाँ सर, मैं बोल रही थी अभी. Yes. तो ये स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था एसिड स्टोरेज में कि ग्लेशियर और डीप ग्लेशियर भी है, तो वो है क्या अपने सिलेबस में? मैम ग्लेशियर ही तो बोल रहा हूँ मैं, अभी तो ग्लेशियर शुरू किया. देखो हाँ, अभी आपने मैं बोल रही हूँ. The another category is called glacier or deep glacier. Deep glacier. But glacier को अभी glacier नहीं बोलते, इसको S3 glacier बोलते हैं. And it's a separate component altogether, right? It is added here, but normally ये separate component है, right? Why separate component we will talk. But एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आप S3 से when you can migrate the object to glacier. But from glacier you cannot migrate object to the S3. Okay, I repeat, you can migrate object from S3 to glacier, but from glacier you cannot migrate the object to the glacier. The object you migrate from the S3 to the glacier are visible from S3 only. You cannot visible through glacier. याद रखना, आप जो S3 से ऑब्जेक्ट ग्लेशियर में माइग्रेट करते हो वो S3 से ही विजिबल होते हैं, ग्लेशियर से विजिबल नहीं होते. ओके, S3 में जब जो भी ऑब्जेक्ट आप डालते होते हो वो बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन नॉट अवेलेबल इन S3. डिफॉल्ट इंक्रिप्शन नहीं होता S3 में, मतलब आपको इंक्रिप्शन ऑन करना पड़ता है. क्लियर है गाइस? आपको S3 में इंक्रिप्शन ऑन करना पड़ता है. अगर आपको इंक्रिप्शन चाहिए तो आपको इंक्रिप्शन लगाना पड़ेगा. बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा. एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ तो इट विल आस्क मी कि बॉस इंक्रिप्शन ऑन करना चाहते हो या नहीं. बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है. अगर मैं बकेट लेवल पे लगाना चाहता हूँ तो मुझे बकेट की परमिशंस में इंक्रिप्शन जाके ऑन करना पड़ेगा. बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन नहीं है. ये देखिए डिसेबल्ड है. क्लियर है? तो इंक्रिप्शन डिसेबल्ड है. आई नीड टू इनेबल इट. ओके, तो S3 इज नॉट बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्टेड. S3 बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्टेड नहीं है.
याद रखना। जबकि ग्लेशियर बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड होता है, ग्लेशियर इज बाय डिफॉल्ट encrypted, S3 is not encrypted. Okay, so Glacier we will talk about later, not now. It's a separate component, जैसे और दूसरे components है वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं इसको. Okay, till now we talked about the object categories, right? So if I go here and if I click on this object and इस object को मैं क्या करता हूँ, राइट, ये ऑब्जेक्ट की परमिशंस है, राइट, रीड परमिशंस है, रीड राइट परमिशंस है, राइट, या मैं यहाँ पे आता हूँ प्रॉपर्टीज में, सॉरी बकेट में, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ. I go to the action, go down, sorry, and I make public. When we started encryption, old object get encrypted. Bucket level पे करोगे तो हो जाएगा सत्यवान. तो यहाँ पे बोलता है कि बॉस आपका ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं हो सकता, आपका ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जो ऑब्जेक्ट कर रहे हो, राइट, चूज द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एडिट फ्रॉम द बकेट, तो बकेट को पहले पब्लिक करो वरना नहीं दिखेगा, राइट. तो एक काम करते हैं, बकेट पे जाते हैं, बकेट की परमिशन पे जाते हैं. अब इसके अंदर ये पूरी बकेट को मैं पब्लिक कर देता हूँ. ये मैंने एक्सेस हटा दिया, मतलब उसने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, मैंने एक्सेस हटा दिया. एंड आई गो सेव एंड आई हैव टू राइट कन्फर्म. तो बकेट पब्लिक हो गया. इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ इंटरनेट पे, राइट. बकेट इज पब्लिक नाउ. अगर आप बाहर जाके भी देखोगे ना तो यहाँ पे देखो लिखा आ गया ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक. पहले नहीं आ रहा था. अभी मैंने क्या किया, इसको विकास करके अंदर जाते हैं इस पर, और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और इस ऑब्जेक्ट का यूआरएल मिलेगा, राइट. इसको अगर मैं एक्सेस, इसका मतलब बकेट पब्लिक है तो ये एक्सेस होना चाहिए. देखो क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाइड. जबकि बकेट जो है वो पब्लिक है फिर भी मुझे एक्सेस डिनाइड आ रहा है. इसका मतलब कि व्हेन माय बकेट इज पब्लिक, व्हेन माय बकेट इज पब्लिक, ऑब्जेक्ट इज नॉट पब्लिक. ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं है, याद रखना इस बात का. इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं इसको. ओके, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चूज माय ऑब्जेक्ट, आई हैव टू चूज माय ऑब्जेक्ट, go there and make my object public. Now it is public. I go in, I close this and I click on this back, click on the URL, and this time see this is available. Even this URL if I give it to you, you will able to open it, right. तो बॉस बकेट पब्लिक मीन्स ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं होता, रिमेंबर इट. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ओके, yes sir. या So then what is the use of making bucket public? क्योंकि बकेट है, बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पब्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट पब्लिक होगा ही नहीं जब तक बकेट पब्लिक नहीं होगा. बकेट को पब्लिक करो फिर ऑब्जेक्ट को पब्लिक करो तो इंटरनेट में आएगा. Got it. Thanks. नो प्रॉब्लम. फ्री टियर में हमें S3 स्टोरेज है वो फ्री है 5 GB तक. 5 GB तक फ्री है.
ये जो ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं इसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 5 टेराबाइट। और S3 में कितना टेराबाइट? सॉरी 5 टेराबाइट या 5 टेराबाइट एक ऑब्जेक्ट का। और इस 5 टेराबाइट के आप अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हो। क्लियर है? और S3 के अंदर आप अनलिमिटेड स्टोरेज डेटा डाल सकते हो, अनलिमिटेड डेटा। एक ऑब्जेक्ट का साइज मैक्सिमम 5 TB तक होता है, याद रखना, राइट। 5 TB का आप 1 KB का डालो, 100 KB का डालो, 100 GB का डालो, कोई टेंशन नहीं। 5 TB तक का डेटा आप एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक आपकी जैसे पिक्चर है वो 5 TB तक हो सकती है, ठीक। ओके, you created this bucket। ये बकेट आपने किसके लिए क्रिएट की है? क्लाइंट ABC, राइट। और किस तरह का डेटा है इसमें? डेटा इज इक्वल टू रिज्यूमेस, राइट। कंपनी क्लाइंट लिख दिया। कॉस्ट कौन से कस्टमर के लिए थी? ABC के लिए। इस तरह के मल्टीपल आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, राइट। लाइक द सेम यू यूज टू डू इट इन EC2, दिस इज कॉल्ड टैगिंग। तो आप बकेट की टैगिंग भी कर सकते हो। क्लियर है? Now we have started talking about the bucket properties from the object properties. Earlier we were talking about the object properties कि object standard हो सकता है, object infrequent access हो सकता है। Now we are talking about the bucket. तो object properties and bucket properties are different, याद रखना। तो I selected this bucket. Inside this I am going to the property. In this property I go down and select tag. तो आप यहाँ पे एडिट करो और यहाँ पे यू कैन ऐड मल्टीपल टैग्स, जो सेम आप EC2 में करते थे। क्लाइंट इज इक्वल टू ABC, बकेट इज इक्वल टू X, राइट। कॉस्ट इज इक्वल टू ABC, जो भी आपको डालना है आप मल्टीपल टैगिंग्स ऐड कर सकते हो। ओके, क्लियर है? बट आई डू so now we can you can talk about versioning, right? Okay, go ahead. तो बेसिकली मैं बता देता हूँ वर्जनिंग क्या होता है गाइस। वर्जनिंग is a mean of keeping multiple variants of the object of the same bucket. You can use versioning to preserve, retrieve and restore every version of every object in your Amazon S3 bucket. With versioning you can easily recover both unintended user action and the application failure. तो बेसिकली क्या है, आपने एक ऑब्जेक्ट को अपलोड किया, ये पिक्चर अपलोड करी जिसका नाम था a.jpg, राइट। तो विकास ने अपने बर्थडे में मॉर्निंग के टाइम पर a.jpg अपलोड करी, राइट। फिर एक सेम ही नाम से a.jpg उसने वापस अपलोड कर दी इवनिंग में। तो ये a.jpg रिप्लेस हो गया इस a.jpg। तो ये मॉर्निंग वाली पिक्चर इवनिंग में आ गई। अब इसलिए लेकिन इसे मॉर्निंग वाली चाहिए, राइट। या तो ये पिक्चर को वापस शूट करे या भूल जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पिक्चर भी रहे और नया पिक्चर भी आ जाए। इस पिक्चर का बैकअप एज एंड व्हेन मैं नया वाला अपलोड करता हूँ, इस पिक्चर का बैकअप हो जाए, राइट। दिस इज कॉल्ड वर्जनिंग, दिस इज कॉल्ड वर्जनिंग। नाउ गो अहेड विद योर क्वेश्चन। वही क्वेश्चन था कि अगर हम वर्जनिंग करते हैं तो अगर मैं इमेज 1, तो ये देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने पे वर्जनिंग इनेबल करता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। नाउ आई गो टू माई S3 बकेट। ये S3 बकेट में दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ये नाम है मेरे ऑब्जेक्ट का, राइट। 74439b.jpg। आई अपलोडेड दिस एट 8:58, राइट। मैंने 8:58 में इसको अपलोड किया था। व्हाट आई डू, आई अपलोड दिस पिक्चर अगेन।
I upload this picture again. Now my picture is being replaced. मेरी पिक्चर रिप्लेस हो गई, राइट. नाउ अगर मैंने वर्जनिंग इनेबल कर रखी है, लेट्स से ये पिक्चर मैंने सेम नाम की अपलोड करी है, बट हो सकता है पिक्चर डिफरेंट हो, राइट. तो मुझे पुराना वाला पिक्चर वापस चाहिए. आई वॉन्ट माई पिक्चर बैक. व्हाट शुड आई डू? यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है वर्जनिंग, जो पहले नज़र नहीं आ रहा था. इसको इनेबल कर देते हैं. ये मेरा पुराना पिक्चर, ये मेरा नया. दिस पिक्चर आई अपलोडेड इन 858. दिस पिक्चर जस्ट अपलोडेड. तो आई हैव माई ओल्ड पिक्चर ऑल्सो हेयर. ये देखिए जो नया पिक्चर है वो यहाँ पे है, पुराना पिक्चर भी अवेलेबल है और नया पिक्चर भी अवेलेबल है. दिस इज कॉल्ड वर्जनिंग. एनी क्वेश्चन एनीवन? तो I have both the picture available if I enable the versioning. संतोष, देयर इज नो लिमिट. आप इसको एक पिक्चर को वापस अपलोड कर दीजिए. इसी पिक्चर को वापस अपलोड कर दूं, बट आपके पैसे अब नाउ 3 पिक्चर्स के लगेंगे, 2 पिक्चर के नहीं, या 1 पिक्चर के नहीं. AWS आपसे 3 पिक्चर के पैसे चार्ज करेगा अभी. ये देखिए 1 2 3. You have to pay for 3 pictures. याद रखना, समझ रहे हैं आप? You have to pay for 3 pictures. Making sense, guys? So we talked about tagging and we talked about versioning. 2 things. Okay. So Kiran, this is you, right? This is Kiran, and he has taken a bucket in North Virginia. He is in Mumbai or India, whatever. If he upload the object from here to here, right, it will travel through the internet and will go to the North Virginia, right? Clear है किरण? यस सर. लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूँ और यहाँ पे AWS का नेटवर्क आ जाता है और वो नेटवर्क से AWS के नेटवर्क से AWS के ही नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो ये फास्ट होगा इंटरनेट से या नहीं होगा? ये इंटरनेट है, ये AWS है और ये पूरा इंटरनेट है नीचे. तो ये इंटरनेट है पूरा, राइट. और ऊपर वाले में इतना छोटा सा पोर्शन इंटरनेट है. उसके बाद AWS का नेटवर्क आ जाता है, उसके बाद पूरा डेटा लेके जाता है यहाँ पर. करेक्ट है ना? तो कौन सा फास्टर होगा? ये वाला फास्ट होगा, क्योंकि नेटवर्क हमेशा फास्ट होता है, राइट, कंपेयर टू इंटरनेट, राइट. और AWS का नेटवर्क है तो बहुत फास्ट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट. आर यू गेटिंग इट? यस. ओके. सो इफ दिस इज द केस देन AWS गिव्स यू द फैसिलिटी. लेकिन एक बार, ये मुंबई पुणे हाईवे है, ये ओल्ड हाईवे है और ये न्यू हाईवे. मोस्ट ऑफ द पीपल प्रीफर टू गो हियर, राइट, क्योंकि ये फास्टर पहुंचा देता है आपको मुंबई, राइट. बट कई बार पता चलता है यहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो गया तो ये स्लो हो जाता है और ये फास्ट हो जाता है. ऐसा होता है ना किरण? यस, होता है. तो इस तरह से अगर यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ट्रैफिक, तो ये बहुत फास्ट तो है, लेकिन अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गया तो ये स्लो हो सकता है.
और इंटरनेट वाला भी फास्ट हो सकता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, राइट। इस टर्मिनोलॉजीज को बोलते हैं एक्सेलरेटर प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर प्रोसेस। तो यू कैन इनेबल दिस प्रोसेस गाइज, एवरीथिंग कॉस्ट यू, ध्यान रखना। तो अगर आप जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को डिसेबल कर दीजिए। जैसे मैंने वर्जनिंग इनेबल करी है, अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे वर्जनिंग डिसेबल कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे जाना है एंड देन आई चेक द ट्रांसफर एक्सेलरेशन प्रोसेस। एक्सेलरेशन आपने लास्ट टाइम नहीं पढ़ाया था सर। मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ, जो भी नहीं पढ़ाया वो भी कवर कर दूंगा, जो पढ़ाया वो भी कवर कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके। मैं बीच में से तो नहीं पढ़ा रहा कि मैं सिर्फ एक्सेलरेशन प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, राइट? ठीक। हाँ। और ऐसा होगा नहीं मैंने नहीं पढ़ा रहा, अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मिल जाएगा। बट एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिस्कशन, राइट। यूज एन एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट फॉर द फास्टर डेटा ट्रांसफर, राइट। आई इनेबल दिस, राइट। और ये क्या करेगा? ये ट्रांसफर फैसिलिटेशन को कर देगा। मैं यहाँ पे लर्न इस पे करता हूँ या यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे होगा ट्रांसफर फैसिलिटेशन प्रोसेस, या तो क्या करता है, एक सैंपल आपको दिखाता भी है। इट टेल्स यू, आपको ये लिंक यहाँ पे लेकर आएगा और ये आपको नॉर्थ वर्जीनिया का देखो ट्रांसफर। ये जब तक मीनवाइल किरण, कैन यू रीड दिस? इसको रीड करना जरा। Speed checker. Speak louder. Uploads to transfer. Okay. The speed checkers uses multi-part uploads. What is it? To transfer a file from browser to versions Amazon S3 regions with and without Amazon S3 transfer acceleration. If companies the speed results and slow the percentage difference for every region. Note. In general, further way you are from an Amazon S3 region, the higher the speed improvement you can expect from using Amazon S3 transfer acceleration. If you see similar speed results with and without the acceleration, your upload bandwidth or a system consistent might be limiting your speed. तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपका जो प्रोसेस है, राइट, एक्सेलरेशन ट्रांसफर जो है आपका, और ये नॉर्मल S3 ट्रांसफर है, राइट। ये नॉर्थ वर्जीनिया का है। ये कहता है 4% फास्टर है। ये दूसरे वाले रीजन्स का भी कंपेयर कर रहा है। सैन फ्रांसिस्को कितना फास्टर है, ऑरेगन कितना फास्टर होगा, डबलिन कितना फास्टर होगा, यहाँ मुंबई भी होगा, कहीं पे मुंबई भी दिखाएगा, राइट। अलग अलग जगह का दिखाएगा। यहाँ पे ये रहा मुंबई, राइट। तो ये अलग अलग जगह का दिखाएगा। देखो ये स्लो है। तो मैंने बोला ना, कई बार क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो स्लो भी हो सकता है, राइट। तो ये दूसरे ना हो, तो ये वाला फास्टर है, ये स्लोअर है। तो अलग अलग एरिया का दिखाता है, ओके। अलग अलग रीजन्स का दिखाता है कि कौन से रीजन में फास्टर है, कौन से रीजन में स्लो है। लेकिन अगर आप एक बात बताइए, अगर आप 10 KB का, 50 KB का, 100 KB का, 200 KB का फाइल यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या स्पीड डिफरेंस दिखाएगा? ज़्यादा तो कुछ दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि फाइल साइज ही बहुत स्मॉल है, राइट। अगर आपका फाइल साइज बड़ा है तो ट्रांसफर एक्सेलरेशन इज गुड। अगर फाइल साइज ही कम है तो ट्रांसफर एक्सेलरेशन का फायदा नहीं, राइट। आर यू गेटिंग इट? अगर आप मेरे घर के पास रह रहे हो 1 किलोमीटर में, तो अगर मेरे घर आ रहे हो तो हार्डली 5 मिनट, राइट। बहुत फास्ट तरीके से जाओगे तो हार्डली 4 मिनट। लेकिन यहाँ से मुंबई जाओगे अगर 3 घंटा लगता है, तो अगर एक्सप्रेस वे से जाओगे तो हो सकता है 1 आवर कम लगे। तो फायदा डिफरेंस नजर आ रहा है, राइट। तो अगर आपका साइज ज़्यादा है फाइल का तो डिफरेंस मैटर करेगा। SRR और CRR क्या है? फुल फॉर्म में बात करो ना आप, दीक्षा। और SRR का मतलब
तो दीक्षा एक बात बताओ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सडनली इसमें इस क्वेश्चन के बीच में कहाँ से आया? ये तो अलग है ना ऑल टुगेदर। तो जो मैं जो बता रहा हूँ एसिलेशन प्रोसेस, ये तो रिप्लिकेशन हो गया CRR। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, है ना। मुझे पता था इनका फुल फॉर्म, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारा दिमाग में क्या है, SRR और CRR। ओके, तो इन दोनों को होल्ड करते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो हम बोल रहे हैं वो एकदम आउट ऑफ द कंटेस्ट में चले जाएंगे, है ना। तो वेट करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द कंटेस्ट की चीज़ें यू आर मोर देन वेलकम गाइस, राइट। जस्ट अ सेकंड गाइस। Okay, so transfer acylation, so we talked about tagging, we talked about versioning, and we talked about acylation process, right? Transfer acylation. So three things we talked about bucket properties, right? About bucket properties. Okay, so यहाँ पे ये मेरा बकेट है, ये मेरा बकेट है, ये बकेट 1, ये बकेट 2। दीक्षा ये बकेट है नॉर्थ वर्जीनिया में, ये बकेट भी है नॉर्थ वर्जीनिया में। दीक्षा यू कैन अनम्यूट, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किया, इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है या बकेट 2 में, बकेट 1 से। दीक्षा Sir, can you hear me? Okay, I am giving the answer of your question. If you are not active, then we will take this later. Okay, have a background noise, no problem. So ये देखो, ये सेम रीजन है, राइट। मैं यहाँ से डेटा यहाँ पे इस बकेट में डालना चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड सेम रीजन रिप्लिकेशन। तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद यू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एक्शन पे जाइए, यहाँ पे लिखिए मूव और कॉपी, राइट। आप लिखिए मूव और कॉपी, और आप क्या करेगा, लेट्स से मैं कॉपी करता हूँ, राइट। कॉपी करने के बाद सेम बकेट में डालना है या दूसरी बकेट में डालना है, आप चूज कर सकते हैं, राइट। डेस्टिनेशन एंड टाइप बकेट, तो सेम बकेट में डालना है या दूसरी बकेट में, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउज S3, देखिए आप सेम बकेट में डालना चाहते हैं या दूसरी बकेट में। मैं दूसरी बकेट में, जैसे मेरे पास टेस्ट बकेट है, मैं टेस्ट बकेट में डाल देता हूँ एंड कॉपी। तो ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट जो था मेरे पास, ये वाला जो ऑब्जेक्ट पड़ा था मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट नाम है इसका 4439 बीच JPG। ये विकास बकेट में पड़ा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ and I go and check to the test bucket, right? टेस्ट वेबसाइट बकेट था ना, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी मिल जाएगा, ये देखो ये रहा। तो it was in my another bucket and copied. This is called same reason replication, right? आपका जो बकेट उसमें कॉपी था वो यहाँ भी कॉपी हो गया। लेकिन लेट्स से आपका बकेट नॉर्थ वर्जीनिया में है, your bucket is in North Virginia and another bucket is in Mumbai। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉर्थ वर्जीनिया में US के लोग एक्सेस कर रहे हैं तो दैट विल बी फास्टर, और लेकिन अगर आपका यूजर्स मुंबई में भी हैं तो उनके लिए ये स्लो हो जाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड लिटेंसी, राइट, दिस इज कॉल्ड लिटेंसी। तो दैट विल बी स्लो। तो आप क्या करते हैं, आप जो भी ऑब्जेक्ट इसमें डालते हैं वो यहाँ पे रिप्लिकेट हो जाता है, वो मुंबई वाले रीजन में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन,
तो क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाने के बाद मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ना ये देखिए रिप्लिकेशन रूल दिख रहा है, तो क्रिएट रिप्लिकेशन रूल, तो आप यहाँ से रिप्लिकेट कर सकते हैं दूसरे में। तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा, एक काम करिएगा आप इस पर क्लिक करिए क्रिएट रिप्लिकेशन रूल, दूसरे रीजन का बकेट सेलेक्ट करिए और आप यहाँ पे रिप्लिकेशन लगा दीजिए कि आपका रिप्लिकेट ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ रिप्लिकेट हो जाए, राइट। जब रिप्लिकेट करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट टाइप भी ऑब्जेक्ट का स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको सेलेक्ट करने के, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये करके देखेंगे आप खुद से, सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, राइट। दीक्षा एंड एवरीवन, राइट, सिंपल है। आप एक सिंपल आपका सोर्स बकेट है, आपका टारगेट बकेट है, टारगेट बकेट दूसरे रीजन्स में है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए, वो बकेट बोलेगा दूसरे रीजन का, अनदर रीजन का बकेट दो, बकेट सेलेक्ट करो द वे दैट वी डिड इट जस्ट नाउ। वहाँ पे कॉपी करते समय आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से आप कॉपी करना चाहते हैं इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में या CRR में, या आप इंक्रिप्शन इनेबल करना चाहते हैं या अदर प्रॉपर्टीज और दूसरी इनेबल करना चाहते हैं, इट विल डू एज एंड व्हेन यू पुट द ऑब्जेक्ट हियर, वो रिप्लिकेट कर देगा दूसरे में भी। दैट्स द सिंपल थिंग। नाउ यू अंडरस्टूड द SRR and CRR, same region replication and cross region replication. Clear है guys? Okay, so let's quickly summarize what we have learned. We learned S3 100 buckets and it is unique and object, and S3 is object storage, it's not a file system, right? Right, inside that we object, how many types of object guys, quickly? Standard, infrequent access, intelligent tiering, come on, इसे क्या हुआ? Yes, come. Right, and we were talking S300 bucket, unique, it's an object storage, object types, standard, infrequent access, right, reduce redundancy storage or intelligent tiering, one zone infrequent access. We have to talk about Glacier, that we'll do it later. Then we talk about the intrinsic redundancy, we talked about CRR, SRR, and we talked about the bucket properties. Inside bucket property we talked about tag, we talked about encryption, not encryption, my bad, tagging, versioning, and after versioning we were talking about transfer acceleration process, right? That's what we talked about. Okay, an assignment I have given to do the CRR, right?
So I'm stopping the recording and so that I can give it to you also.